ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗेटिव प्रॉपर्टीज ਦੇ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है relative lowering in vapor pressure। ठीक है, तो देखो की है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 20 degree Celsius is 17.5 mm of mercury and lowering in vapor pressure of sugar solution is 0.061 mm of mercury। ठीक है, तो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ that is 17.5 mm of mercury, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ that is given 0.061 mm of mercury। मतलब जो वाटर है ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? 0.061 mm of mercury। ठीक है, तो कैलकुलेट की कुछ करना है relative lowering in vapor pressure of solution and mole fraction of sugar and water। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट ਹੁਣ क्लियर है अपन तो स्टेटमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ न्यूमेरिकल सॉल्व ਹੁੰਦੇ ਹੈ ना। तो अपने कोले relative lowering in vapor pressure जो है उसका फार्मूला की है, फार्मूला अपन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। ठीक है, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ न्यूमेरिकल्स क्लियर ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ PA ਨੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ A ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੇ B ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਨਾ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ PA ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ। PA की है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। PA नोट अगेन वेपर प्रेशर ऑफ A मतलब सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। XB जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। B है ना, B मतलब सोल्यूट। ठीक है, तो हुण इस दे विच जो PA नोट माइनस PA हुंदा है दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अपन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। दिस वैल्यू PA नोट माइनस PA इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ਤੇ ਜੋ ਆਹ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ this one PA naught minus PA over PA naught, this complete value is called relative lowering in vapor pressure। ठीक है, relative lowering in vapor pressure। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज relative lowering in vapor pressure जो अपन ने कैलकुलेट करना है। relative lowering in vapor pressure मतलब PA नॉट minus PA over PA नॉट ये वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करनी है ना। ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ PA नॉट minus PA this is called lowering in vapor pressure। PA नॉट ਕੀ ਹੁੰਦਾ? वेपर pressure of component A in pure state है ना। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ पहला था PA नॉट माइनस PA मींस के लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो अपन गिवन है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली उन्हें दिता हुआ है कि जब वाटर ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੋਅਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੈਲਿਊ दैट इज 0.061। ठीक है, ओवर PA नॉट वाटर ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 17.5। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.00348 0.00348। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकेंडली इसने अपन ਨੂੰ एक और क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलो ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ थर्ड वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो हुन देखो आह जो अपने को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना। PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XB अपने को यही फॉर्मूला है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अपन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने को आ गया। ठीक है, तो जो रिलेटिव लोअरिंग है दैट इज आल्सो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब है कि जो XB है उसकी वैल्यू भी अपनी को कितनी आएगी? 0.00348। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ गया, B मतलब सोल्यूट, सोल्यूट किहड़ा इत्थे अपने को शुगर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर दा आ गई। हुण अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करनी है। वाटर किवें करांगे अपन ਨੂੰ पता है कि जो XA प्लस XB ਹੁੰਦਾ है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट मींस कि जो XA है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो XB की वैल्यू अपने को है 1 माइनस 0.00348। तो तुसी सिंपली इसनु 1 चों माइनस करना है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मोल फ्रैक्शन ऑफ
ਵਾਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 0.9965। ठीक है, मैं सोल्व कर रहा है तो 0.9965 ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल्स हो गए। हम थर्ड वाले पे पहुंचते हैं ਆਪਾਂ। थर्ड वाला की है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना है। हम किवें करांगे देखो, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚ ਨॉन ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है ਤੇ जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर लो होता है। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਾਂ कर्व्स बना के भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो मैं एक सिंपल जी लाइन मार रहे हैं कि आ मेरे को इनिशियल लाइन है, इस इनिशियल लाइन तो लैके जो इथों तक दा प्रेशर है दैट इज द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब PA0। ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो आ मैं मान लेना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैं मान लेना P। ठीक है, दिस इज P। तो हम देखो जो सॉल्वेंट नु तुसी सॉल्यूशन च कन्वर्ट किया तो उस च लोअरिंग इन प्रेशर आ गया। कितना लोअरिंग इन प्रेशर आया? ठीक है, दिस इज कॉल्ड relative lowering in pressure। इन्हों आप किवें लिखिए, चलो आई लिख लेंगे आप relative lowering, सॉरी दिस इज नॉट relative lowering, दिस इज lowering in vapor pressure। ठीक है, relative lowering या lowering in vapor pressure। तब तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ solvent ਦਾ vapor pressure ਆ ਸੀ, solution ਦਾ vapor pressure ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ and this difference is called lowering in vapor pressure ਕਿ solvent ਤੋਂ ਜਦੋਂ solution ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ decrease in vapor pressure ਆਇਆ। तो हुण आपां नूं की किया उन्हें कैलकुलेट करने लई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब P की वैल्यू आपां ने फाइंड आउट करनी है ना। तो हुण इस छोटी जी डायग्राम तो आपां P की वैल्यू किवें फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला अपने कोले बन जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये फाइंड आउट करना है किवें करांगे, आ मेरे कोले टोटल वैल्यू है, अगर इस वैल्यू दे विचों मैं आह वाली वैल्यू माइनस करदा तो मेरे कोले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। सिंपल चीज है ये। तो आ मेरे कोले टोटल वैल्यू है जिवें आपां डिस्टेंस दे विच कैलकुलेट करते हैं कि आ डिस्टेंस आपां ने P की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो इस टोटल डिस्टेंस चो अगर मैं यह वाली डिस्टेंस माइनस करदा तो मेरे कोले जो आह वाली डिस्टेंस है ये अपने कोले आ जाएगी, है ना। सो P विल बी इक्वल टू PA0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इत्थे पे लिख लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस की माइनस करने से अपने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माइनस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखियो दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नॉट रिलेटिव लोअरिंग, है ना। तो हुण अपने को देखो प्रेशर P अपने फाइंड आउट करना सी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट दे विच वेपर प्रेशर कितना दिता होया है, दिस इज गिवन 17.5 mm, 17.5 mm वाटर दा प्योर स्टेट दे विच, है ना। माइनस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना लोअर होया प्रेशर 0.061। ठीक है, इतना लो होया सीगा। सो आह वाली वैल्यू जो है वेपर PA0 दी वैल्यू ये अपने को गिवन सी 17.5 ते आ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये अपने को कितना आया सी 0.061 ते P अपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फार्मूला है दिस माइनस दिस, ठीक है, 17.5 माइनस 0.061 दैट इज इक्वल टू P। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लो, P की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 17.439 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो तीनों न्यूमेरिकल्स जो है अपने इजीली सॉल्व हो गए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखियो, अगे भी अपन न्यूमेरिकल्स लोड लै सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपन। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन 0.850 बार, a non volatile solid 0.50 gram is added in the 39 gram benzene, molar mass given है benzene का 78 gram per mole, the vapor pressure of solution is then 0.845 bar, molar mass of the solid is equal to फाइंड आउट करना है ना। तो हम देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸੀ ਪਿਓਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਿਸ ਦਾ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ 0.850 बार। ठीक है, इस दे विच कहंदा कोई एक अननोन सॉलिड लिया, कितना लिया सीगा अननोन सॉलिड 0.50 ग्राम,
उसनू बेंजीन च ऐड किया, किन्ने ग्राम बेंजीन च ऐड किया, 39 ग्राम बेंजीन च ऐड किया। ठीक है, तो कहना जेड़ा न्यू सोल्यूशन बनया ओदा वेपर प्रेशर अपने कोले 0.845 बार। ठीक है, तो जस्ट की किया इन्होंने 39 ग्राम जो है वो बेंजीन लई। ठीक है, इस दे विच 0.50 ग्राम जो है कोई अननोन सॉलिड पाया, ते जो न्यू सोल्यूशन बनया उसका वेपर प्रेशर आया 0.845। ठीक है, ते कल्ली बेंजीन का जो वेपर प्रेशर सी दैट वाज 0.850 बार। ते मोलर मास ऑफ सॉलिड जेड़ा हैगा वो अपने कैलकुलेट करना है, मतलब जेड़ा भी यहां सॉलिड पाया है इसका गिवन मास तो अपन दिता है ते मोलर मास अपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किवें करांगे, देखो अपने कोले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो आ फार्मूलास कुछ बने सी PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XP। जो आप XP ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ WB MA ओवर WA MB, है ना। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू WB MA ओवर MB WA। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਡ। ਸੋਲਿਡ मतलब सोल्यूट, है ना। ਤਾਂ सोल्यूट ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। सोल्यूट ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ B, A ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ B सोल्यूट ਹੈ, याद रखियो। MB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करनी है ना। ਬਾਕੀ ਟਰਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟਰਮਸ। ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PA नोट कितना दिता होया है। PA नोट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। बेंजीन अपना सॉल्वेंट है, प्योर स्टेट दे विच प्योर बेंजीन दा वेपर प्रेशर कितना है 0.850 बार। चलो गिवन है, ठीक है। PA मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.845, ठीक है बार। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आ गया अपने को 0.845। अच्छा, हुन WB मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट दा कितना गिवन मास है अपने कोले, किन्ने ग्राम ऐड किया सीगा सोल्यूट 0.50 ग्राम, ये भी गिवन है। MA मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब केड़ा सॉल्वेंट इथे बेंजीन। बेंजीन दा मोलिकुलर मास से दिता होया चलो 78। अगर ना दिता होवे तां भी तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 हुंदा, तो जोड़ लियो मास जो है वो आ जाएगा। ओके, होर अपने कोले दिस इज 78 ग्राम पर मोल। होर की चाहिए WA मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन है, तो गिवन मास ऑफ बेंजीन की दिता होया अपन 39 ग्राम। तो सारी वैल्यूज अपने कोले MB अपन ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आगे करेंगे। PA नोट कितना है 0.850 माइनस PA 0.845 डिवाइड बाय 0.850, ठीक है, इज इक्वल टू WB कितना दिता हुआ अपन 0.50 इनटू MA कितना 78 ओवर MB कितना, MB का अपन फाइंड आउट करना है इनटू WA किथे गया ये 39, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे सोल्व इसनु, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ MB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम पर मोल यूनिट बचेगी, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड जो अननोन सॉलिड इन्होंने ऐड किया सी उसका मोलिकुलर मास अपने कोले आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है कोई, उसका मास अपन कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसका मोलर मास गिवन है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर अप टू 80%। मतलब कहंदा 114 ग्राम 114 ग्राम ऑक्टेन अपन लई है, ठीक है। इस दे विच कितना सोल्यूट ऐड करिए, मतलब WB कितना सोल्यूट ਆਪਾਂ ऐड करिए WB कितना ऐड करिए ताकि इस का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होके 80% रह जाए, ठीक है। मतलब अगर इनिशियल 100 सी तो रिड्यूस होके 80 रह जाए, तो कितना आप सोल्यूट ऐड करिए वो अपनी काउंट करना है, ठीक है। तो देखो किवें करांगे, अपने कोले फार्मूला है PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XB, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। xb ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, xb ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ b ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, है ना। तो ये अपने कोले फार्मूला होता है। तो हुण आपां देखिए अपने कोले की कुछ गिवन है। तो अपने कोले सिर्फ मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिता होया, दैट इज 40, ठीक है। ते वेट ऑफ ऑक्टेन दिता होया कि कितना ऑक्टेन अपने लिया, ऑक्टेन इज सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट लिया, कितना लिया 114 ग्राम, मतलब WA। तो गिवन मास ऑक्टेन दा सॉल्वेंट दा गिवन है, ठीक है। ते मोलिकुलर मास अपन दिता होया सोल्यूट दा। हुण अपन ने फाइंड आउट करना है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो देखो अपन एक चीज उन्हें दी है, वो कहता भी जो इनिशियल प्रेशर सी उसनों डिक्रीज करके 80% ते ले आंदा। तो इत्थों ही अपन सारा कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप मान लेंगे दिस इज द लाइन फॉर द सॉल्वेंट, ठीक है। ये अपने को प्रेशर है सॉल्वेंट का, ते डिक्रीज होके अपने को प्रेशर रह जाएगा सोल्यूशन का, है ना। तो 100% 80% तक लेके आना ਆਪਾਂ परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ that was 100, ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਪਿਓਰ ਆਕਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ 100, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 100 ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मान लिया 100, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਤੋਂ 80 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, 100 ਤੋਂ 80। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ वेपर प्रेशर शुड बी रिड्यूस्ड अप टू 80%, अप टू 80% रिड्यूस करना है। मतलब ये ना समझ लियो कि 100 चो 80 रिड्यूस करना है, 100 चो 20 रिड्यूस करना है, ठीक है। कितना रिड्यूस करना है अपन ने, 100 चो सिर्फ 20 रिड्यूस करना है ताकि 80 ते पहुंच जाए, 80 तक पहुंचना है अपन ने, 80 डिक्रीज नहीं करना, ठीक है। सो इनिशियल अपन लेके चले सी 100, आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया, 80% तक पहुंच गया, 80 तक पहुंच गया। मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आया 20। दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आ गया 20। 100 ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। 80 ਕੀ ਆ ਗਿਆ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ PA नोट कितना है 100 माइनस PA कितना है 80 ओवर PA नोट 100, ठीक है। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ਤੇ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ B ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ, मतलब WB ओवर MB, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। दिस इज 100 माइनस 80, दैट इज 20 ओवर 100, ये बच गया। दैट इज इक्वल टू WB ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना है, ठीक है। WB ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x मान लेने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओवर MB मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलिकुलर मास अपन दिता हुआ है 40, सो ये बन गया x ओवर 40 ओवर WA ओवर MA, WA मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट का गिवन मास है अपने के लिए 140, ठीक है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ A, मोलिकुलर मास भी इसका 114 ही होता है, तुसी ऑक्टेन दा काउंट करके देख लियो, ठीक है, 114 ही आएगा। प्लस WB ਆਪਾਂ मान लिया x, MB अपन गिवन है 40, सारी वैल्यूज आ गई, सिर्फ x रह गया, x को फाइंड आउट करना है। तो थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी होगी, बट वैल्यूज अपने को सारियां आ गई, ठीक है। x फाइंड आउट करना 20 ओवर 100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2, है ना। इसको सोल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x ओवर 40 ओवर ये कैंसिल होके बच गया 1 प्लस x ओवर 40, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करना है, किवें करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.2 into 1 plus x over 40 is equal to x over 40 रह जाएगा। लो जी, तो हम अपने के लिए आ गया 0.2 plus 0.2x over 40 is equal to x over 40, ठीक है। x नु x वाली टर्म्स आप एक साइड पे रख लेने हैं, इन्हें उधर ले जाने हैं। x over 40 minus 0.2x over 40, सो ऑलमोस्ट हो गया सॉल्व। एलसीएम ले लो 40, दिस इज 1 माइनस 0.2x बचेगा,
ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 0.2 ਮਤਲਬ 0.8x/40 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 0.2 इधर लिख लेंगे स्पेस नहीं है 0.2 इज इक्वल टू 0.8x/40 आ गया ठीक है। तो हम इसको x कैलकुलेट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.2 into 40/0.8 दैट इज इक्वल टू x ठीक है। इसमें सॉल्व करो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ जाएगा x की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 10 ठीक है। तो मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो अपन ने ऐड किया सी वो कितने ग्राम ऐड करना पड़ेगा अपन 10 ग्राम ठीक है। यही अपन ने फाइंड आउट करना सीगा कि आपा कितना जो सॉलिड है कितना सोल्यूट आपा ऐड करिए ताकि अपना जो वेपर प्रेशर है वो 100 तो रिड्यूस होके 80 ते रह जाए 100 तो रिड्यूस होके 80 ते रह जाए ठीक है। सो अपन 10 ग्राम जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा ताकि अपना जो वेपर प्रेशर है वो 100 तो रिड्यूस होके 80 पे पहुंच जाए ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 846 ग्राम वाटर। यूरिया है 30 ग्राम लिया है उसनु ਆਪਾਂ 846 ग्राम वाटर ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ मतलब दिस इज आवर सोल्यूट सोल्यूट मतलब P है ना ਤੇ सॉल्वेंट है वाटर मतलब A कंपोनेंट है वाटर ਤੇ कैलकुलेट की करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ 846 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ मतलब ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 23.8 mm ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ PA0 PA PA0 WB MB MA WA है ना। तो इस फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PA0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट कितना है 23.8 माइनस PA अपन ने कैलकुलेट करना है PA मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन है ना। तो ये अपन ने कैलकुलेट करना है ओवर प्योर स्टेट 23.8 WB given mass of B given mass of solute का given mass कितना है 30 ग्राम into molar mass of solvent का molar mass water का molar mass अपन पता है 18 ग्राम होता है डिवाइड बाय molar mass of solute का molar mass given है। यूरिया का ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर सकते हो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 ठीक है। ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर सकते हो ਇਹਨਾਂ ਨੇ given होएगा ए है 60 ठीक है। तो 60 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ यूरिया का इनटू WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया ਇਹਨਾਂ ਨੇ 846 ग्राम ठीक है। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिंपल हो जाएगा।